So in yesterday's class we have studied the semi-conservative nature of the DNA. With experimental proof we have done it. Okay? The experimental proof was given by or put forward by what you call Michelson and Stahl. Michelson Stahl ने अपना experiment किया था on the E. coli by radioactive, not radioactive, the heavy element, that is heavy element meaning that is the heavy isotope of nitrogen N15 है ना, N14 की दो वेराइटी लेकर के उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था. दैट एक्सपेरिमेंट इफ यू गॉट एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल स्टार्ट with the next topic, that is the replication of DNA. So today we shall study the replication of DNA. No. Replication of DNA. When we studied DNA, हमने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा. सेंट्रल डॉगमा एंड सेंट्रल डॉगमा ये कहता है कि एक डीएनए जो है वो अपनी खुद की कॉपी बना सकता है. दिस इज कॉल्ड replication, and a DNA can make RNA, and RNA can make polypeptide or protein. ठीक है. This process, that is DNA to DNA, is called replication. And DNA to RNA is called transcription. And RNA to protein is called translation. Okay, so these three type of processes we have studied. Now let us see how these are performed. इन तीनों को हमको पढ़ना है. आज हम जो है replication पढ़ते हैं. We have to study replication. Replication is a process in which a DNA can make its exact replica. एक DNA से बिल्कुल वैसा के वैसा ही दूसरा DNA बन जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं replication. And in yesterday's class or even before that, in the some of the classes I explained, that is when the Watson and Crick has given their model. तो उन्होंने वहाँ पे अपने आप खुद के शब्दों में लिखा है कि it did not fail to escape or attention that the DNA complementary rule जो है base pairing rule was so strong that it suggested as कि DNA should faithfully make their copy. It should be faithfully able to produce its own replica. Why? Because जो adenine है और जो thymine है, जो cytosine है and guanine है, जब the two strands will open, तो each strand will act as a template, and adenine के ऊपर thymine, cytosine के ऊपर guanine, guanine पे cytosine and thymine पे adenine अपना आप से आकर के लग जाएंगे और कुछ लग ही नहीं सकता उनके अलावा. So there is no chance. तो उन्होंने कहा कि इसके हिसाब से तो replication faithfully हो सकेगा because base pairing rule is so strong. So that is how they have given an idea. ठीक है. Later on, number of scientists put forward their works or their contribution, and finally we are in a state to understand that how the replication take place. ठीक है. So when the replication, that is if we study the process of replication, तो उसको देखते हैं कैसे होता है. Replication के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? What are the things required? We require first a certain enzymes. Second, the source of energy. And third, that is the nucleotides. एंजाइम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम्स की. रिप्लिकेशन के लिए 5 एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. देयर आर 5 एंजाइम्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट. दे आर A, B, C, D and E. First one is helicase. Second is topoisomerase. Topoisomerase. Third is primase. Primase.
SE. Fourth is DNA dependent DNA polymerase. And the fifth one is DNA dependent DNA ligase. 5 enzymes are required. ठीक है? Let us study about these enzymes. What are their roles? What they are actually meant for? ठीक है? एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वो एंजाइम कर क्या रहे हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं अपन हेलिकेज. तो वी शैल स्टडी अबाउट हेलिकेज. HELICASE. ठीक है? We know that the DNA is helical structure. ठीक है? DNA is a helical structure, and these helix are actually held together by the hydrogen bond which is existing between the nitrogen bases of the two strand, that is the purine and pyrimidine. ठीक है? यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि यहाँ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के बीच में ये बॉन्ड्स हैं, एडेनिन एंड थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, वाइस वर्सा. अगर ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये इस तरह से लिपटे हुए नहीं रहेंगे. ये इसलिए लिपट रहे हैं, ये इसलिए कॉइल हो रहे हैं बिकॉज उनके बीच में ये बॉन्ड है. कौन से हैं ये बॉन्ड? दे आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स. कौन से बॉन्ड्स कहाँ पर हैं? ये दीज बॉन्ड्स आर एग्जिस्टिंग हियर. ठीक है? इन बॉन्ड्स को तोड़ देना है यहाँ से. ये बॉन्ड्स को अगर हम यहाँ से तोड़ देंगे तो ये स्ट्रैंड जो है दो अलग अलग हो जाएंगे. डू वी नीड टू break the entire that is length of the DNA into two? No. हम DNA को पूरे को नहीं खोलेंगे, हम किसी खास जगह से इसको ओपन करना शुरू करेंगे and then it will progressively open till end and the new strand will be produced. तो हमको क्या करना है? We have to break the hydrogen bond. ठीक है? तो हेलिकेज बॉन्ड, हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है? It breaks, और रादर हम लिख देते हैं डाइजेस्ट the hydrogen bonds between purines and pyrimidines of the two strands. ठीक है? तो हेलिकेज एंजाइम का ये काम है, प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ेंगे. कहाँ से तोड़ेंगे? कहाँ से तोड़ेंगे? दैट विल स्टडी लिटिल लेटर. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स. ऐसा नहीं है कि एंटायर लेंथ पे पूरा का पूरा तोड़ करके सेपरेट कर देंगे. दिस विल बी स्टार्ट ब्रेकिंग फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट, और जिस जगह से वो टूटना शुरू होता है उस पॉइंट को, उस जगह को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक है? अच्छा, अब ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सूतली है या कोई ये दिख रहा है आपको? दिस वायर, कैन यू सी? हेलो? Yes, sir. so late response. Okay, so मान लीजिए इसमें से एक मतलब जो दो स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है. नाउ दे आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम. ठीक है? तो सपोज अपन ने इनके बीच के बॉन्ड तोड़ दिए, तो बॉन्ड तोड़ देने से क्या होगा? ये फ्री हो जाएंगे. तो फ्री हो जाने से क्या ये अलग हो सकते हैं क्या? चलो हम अलग करते हैं, खींच के हमने इतना अलग कर दिया. लेट अस लीव इट. व्हाट हैपेंस? ये तो वापस कॉइल हो जाएंगे. अगर हम इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा? ये देख लीजिए, दे विल अगेन रिटेन देयर कॉइल स्ट्रक्चर. कॉइल स्टेट इसमें वापस आ जाएगी. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ टेंशन बिटवीन देम. वो टेंशन जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक ये दो स्ट्रैंड अलग अलग नहीं हो सकते. ठीक है? ये तो मैंने काफी फोर्स लगा दिया, और वो प्लास्टिक है, उसके अंदर कॉपर वायर है, तो दैट इज टेकिंग लिटिल टाइम. अदरवाइज अगर मान लीजिए आपने इतना सेपरेट किया और छोड़ेंगे तो ये तो वापस आकर के बन जाएगा. ठीक है? तो द सेम इज ट्रू विद द डीएनए. अगर डीएनए के हेलिक्स को अगर आप खोल करके सेपरेट करना चाहेंगे जस्ट मेरली बाय ब्रेकिंग देयर बॉन्ड्स, दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म टू सेपरेट स्ट्रैंड. वो तो वापस से जुड़ जाएंगे, वापस से मतलब कॉइल हो जाएंगे. तो हमको एक दूसरे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज. सो हमने लिखा बी टोपो आइसोमरेज.
मरेज। ये टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है? टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, जब ये 2 स्ट्रैंड्स को अपन ने खोला, इनके बीच का जो बॉन्ड तोड़ा है अपन ने, तो उससे क्या होगा कि ये इनको उनके बीच का टेंशन, सपोज इसको मैं यहाँ से तोड़ता हूँ, है ना, तो फिर तो मतलब खोल दिया अपन ने, तो फिर क्या होगा, इसके किसी एक स्ट्रैंड को आपको काट करके अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अलग नहीं करेंगे तो क्या है, वो वापस से जुड़ जाएगा। तो हम इसको काट करके सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे तो उसके बाद में और वापस से जोड़ दीजिए, तो ये 2 स्ट्रैंड इस तरह से खुल जाएगी। इफ द 2 स्ट्रैंड्स आर नॉट, मतलब इनको काटते नहीं है यहाँ से, तो वो वापस से कॉइल हो जाएंगे। सो टोपो आइसोमरेज क्या करता है, इट कट्स एंड रिलीज द टेंशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रैंड एंड देन रीजॉइन देम। तो अब अपने पास में एक रिप्लिकेशन फॉग बन गई, देख लीजिए, एक स्ट्रैंड उधर हो गया, एक स्ट्रैंड इधर हो गया। तो ये काम जो है वो टोपो आइसोमरेज का है, रिलीजेस द टेंशन बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स आफ्टर सेपरेशन ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बुक में इसका नाम नहीं दे रखा, आप नहीं लिखे तो कोई भी बात नहीं है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ना पढ़े तो ना पढ़े, पढ़ लिया तो हमारे काम का है, हमने पढ़ लिया। तीसरा एंजाइम है प्राइमेज। प्राइमेज को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड्स जमेंगे ना इनको ऊपर आकर के, से फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पे जो भी स्ट्रैंड है इसके ऊपर, अब हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ आया, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है, सातवां यहाँ है। जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे उनको वो जोड़ता चला जाएगा, ठीक है। इट विल फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देम कंटिन्यूअसली, उनको कंटिन्यूअसली जोड़ता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक नई चेन बन जाएगी। दोबारा से पढ़ते देख लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएनए था, ये डीएनए है, एंड ये रिप्लिकेशन फॉर्क बन गई, और ये वाली चेन हमारी 3' to 5' चल रही है। अलग अलग कलर ही कर देता हूँ, दैट विल बी बेटर। जो रेड वाली है वो हमारी चल रही है 3' to 5', और ब्लू वाली है वो हमारी चल रही है 5' to 3'। ठीक है, ये तो आपको पता है 3' to 5' और 5' to 3' क्या होते हैं, दैट इज द दीज आर द मोइटीज, जो अपन ने पढ़ा है कि द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। नाउ डीएनए की एक खास बात है कि उसमें जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन चलेगा। द न्यू स्ट्रैंड विल ऑलवेज बी synthesized in 5 to 3 direction। तो say for example यहाँ पे एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन है। एडिनिन, साइटोसिन, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, अब बोल दिया तो लिख देते हैं, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। यहाँ भी थाइमिन ले लो, ये अभी सेपरेट नहीं हुआ, ठीक है। इसको ब्लू से ले लेते हैं। यहाँ थाइमिन के ऑपोजिट इधर क्या होगा, एडिनिन होगा, यहाँ पे साइटोसिन होगा, यहाँ पे ग्वानिन होगा, यहाँ थाइमिन होगा, यहाँ साइटोसिन होगा, यहाँ ग्वानिन होगा और यहाँ थाइमिन होगा, ठीक है। अब नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हो रहा है, नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हो रहा है वो कैसा होगा, एडिनिन के ऊपर थाइमिन आके लगा, साइटोसिन पे आके ग्वानिन लगा, जैसे ही एडिनिन और थाइमिन दो आए, इनको दोनों को जोड़ देगा। कौन जोड़ेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पहला न्यूक्लियोटाइड आया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, तो पहले और दूसरे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम किसका है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नो सूनर द ग्वानिन इज फ्रीड, साइटोकाइनिन वाला न्यूक्लियोटाइड वहां पे आ जाएगा। जैसे ही साइटोकाइनिन वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे एडिनिन फ्री हुआ, थाइमिन वाला न्यूक्लियोटाइड वहां आ जाएगा और इनको दोनों को जोड़ देंगे। फिर जैसे ही साइटोसिन फ्री हुआ, ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड आया और इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ग्वानिन फ्री हुआ, साइटोसिन वाला आ जाएगा और इसको जोड़, तो ये इमीडिएटली जुड़ते जाएंगे, जहां पे मैं डॉट्स बना रहा हूँ इन जगहों पे जुड़ते जा रहे हैं और कंटिन्यूस में जुड़ रहे हैं, है ना।
तो ये जो कंटिन्यूएशन में जुड़ रहे हैं इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड। और हम इसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, LEADING। किस डायरेक्शन में? 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन। 5 to 3 तो ये कंटिन्यूस बनते ही चल जाएंगे, एक एक जैसे जैसे फ्री होगा, जैसे अब ये थाइमिन फ्री हुआ, इमीडिएटली एडेनिन आके लगेगा और इनका बीच का बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। वेरेस ये दूसरे वाला स्टैंड है उसमें 5 to 3 डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में चलेगा, वो इधर तो बन ही नहीं सकते क्योंकि न्यू सिंथेसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन 5 to 3 डायरेक्शन। तो ये तो लगातार नहीं हो सकता ना, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया अपन ने, तो इतना तो पहले खुलना पड़ेगा तभी तो यहाँ से यहाँ तक का शुरू होगा। फिर जब तक अपन ने यहाँ से यहाँ तक बनाना शुरू करा, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बनाता हूँ, यहाँ से शुरू कर देता हूँ, तो अगर मान लीजिए हमारे ना साइटोसिन यहाँ लगा है, एडेनिन यहाँ लगा है, ग्वानिन यहाँ लगा है, साइटोसिन यहाँ लगा है और एडेनिन यहाँ लगा है। अब ये मान लीजिए पूरा बन गया, तो अब आगे के फ्री हो गया, आगे के अभी जुड़े नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये रुक रुक के चलेगी, कुछ हद तक ये खुल जाएंगे, तब उसके बाद नई चेन बनेगी, फिर कुछ हद तक खुलेंगे, फिर नई चेन बनेगी। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लैगिंग। ये तो पीछे ही रह जाता है, लैगिंग स्टैंड। और विल कॉल दैट इट एज अ डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, discontinued स्टैंड, कंटिन्यूअस स्टैंड, ठीक है। सो ये ऐसे चलेगा, फिर इसके बाद में फिर नया टुकड़ा आकर के लगेगा यहाँ से यहाँ तक। तो वो मान लीजिए आपके पास ये एडेनिन खुला तो फिर थाइमिन वाला, यहाँ साइटोसिन खुला तो यहाँ, तो इसका इन्होंने क्या तोड़ निकाला डीएनए ने, कि डीएनए क्या पहले से ही कुछ स्ट्रैंड के स्ट्रेच बना के रख लेता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच बना के रख लेगा। ये मान लीजिए एक स्ट्रेच उसने पहले से सिंथेसाइज के रखा, तो नो सुनर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन वाला आया इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये इमीडिएटली आके वहां लग जाएगा। तो ऐसे जो छोटे छोटे स्ट्रेच बनते हैं सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रेच, उनको हम कहते हैं प्राइमर्स, ठीक है। प्राइमर्स क्या है? प्राइमर्स आर स्मॉल रैंडम स्ट्रेच ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के रहेंगे, जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ACGAC, किसी पे TCTC, किसी पे ATTA, किसी पे ATCG, कुछ भी हो सकते हैं। और जैसा वाला कॉम्बिनेशन खुला और उसके ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है वो आके वहां फिट हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेच यहाँ पे आके फिट होंगे, तो अब इनको हम एक नया नाम देंगे, इसका नाम हो जाएगा अब इसको नाम को मैं यहाँ पे ग्रीन में लिख रहा हूँ, देखिए इसको कहते हैं ओका जाकी फ्रेगमेंट्स। दैट इज दोज प्राइमर्स यूनिट्स विच फिट्स हियर, उन प्राइमर यूनिट्स को अब हम क्या कह देंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए एक खास तरह के एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए लाइगेज। तो लाइगेज, डीएनए डिपेंडेंट लाइगेज क्या कर रहा है, जॉइंस द स्मॉल स्ट्रेच of single stranded DNA, that is primers, ठीक है, on the basis of complementary rule, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स के हिसाब से जुड़ते चल जाओ, ठीक है। इन्हीं स्टेटमेंट्स को अब हम क्या कह देंगे, ओका जाकी फ्रेगमेंट्स।
तो ये क्या लिखा है, दैट इज डीएनए लाइगेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए लाइगेज क्या है, जॉइंस द स्मॉल स्ट्रेच ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड प्राइमर शॉर्ट फुटाजेटिक फ्रैगमेंट्स व्हिच आर अटैच्ड, ठीक है। और प्राइमर का प्राइमेट का क्या काम हो गया, दैट इज इट सिंथेसाइजेस, it synthesizes various combinations of, एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज अजीब सी आ रही है। मेरी आवाज अजीब सी आ जाएगी, ठीक हो जाएगा, नेट की प्रॉब्लम। It synthesizes various combinations of, सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दोबारा पूछ लेंगे। So we have done the 5 different enzymes which are used in the DNA replication. Am I audible? Yes sir. Yes sir. Echoing हो रही है? No sir. No, okay. तो replication शुरू करते हैं। अच्छा नहीं, पहला संकट तो हमारा पूरा हो गया, दैट इज एंजाइम कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ द सेकंड थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ सर आपके दोनों माइक ऑन है। हाँ यही तो कह रहा हूँ मैं, एको हो रही है क्या, तो आपने मना किया नहीं। अरे यार गर्मी अलग है, परेशान। Okay, now you can hear me? Yes sir. Okay, right. So the second जो प्रॉब्लम थी हमारी वो थी दैट इज एंजाइम्स कौन से, मतलब एंजाइम तो हमने पढ़ लिया, दैट इज एनर्जी का सोर्स क्या रहेगा, व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। So we have seen that is in all our body, जहाँ पे भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है हम किसको यूज करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बट यहाँ इन डीएनए रिप्लिकेशन हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज नहीं करेंगे, मतलब ये तो करेंगे ही करेंगे, बिसाइड दिस वील यूज समथिंग एल्स आल्सो। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मूला आपको आता है, डू यू हैव एनी आइडिया दैट what is the structure of ATP? होगा तो सही, आप बताते नहीं है, बोलते नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर यहाँ एडिनोसिन टाइप का नाइट्रोजन बेस है, ये हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर का फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, और ये इसका फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन पे एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, और ये तीसरा फॉस्फेट। तो ये हो गया हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या है, ये दो जो फॉस्फेट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, दे आर एनर्जी रिच फॉस्फेट्स, इनको तोड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी। लेकिन ये वाला फॉस्फेट हम नहीं तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सेम वे अगर एडिनोसिन की जगह थायमिन लगा देंगे, क्या कहते हैं साइटोसिन लगा देंगे या ग्वानिन लगा देंगे, तो ये हमारे नाम हो जाएंगे थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको एडिनिन की जगह थाइमिन लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है एडिनिन की जगह आप थाइमिन लिख दीजिए। तो अरे अब मैंने अगर यहाँ थाइमिन लिख दिया तो ये हो जाएगा थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर मैं यहाँ पे साइटोसिन लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर मैं यहाँ पे ग्वानिन लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है।
तो ये न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 3 फॉस्फेट्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़े थे वो ऐसे होते हैं जिनमें 1 फॉस्फेट है। ये हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें इंस्टेड ऑफ 1 वी गॉट 3 फॉस्फेट्स। ओके, सो जैसे ही बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से जो भी रेस्पेक्टिव मतलब न्यूक्लियोटाइड आना है, तो इंस्टेड ऑफ दैट इज 1 फॉस्फेट इतना आ रहा था तब हम इसको न्यूक्लियोटाइड करे थे। अब हम इसको 1 फॉस्फेट की जगह 3 फॉस्फेट वाले लेकर के आएंगे, तो इसको हम कहेंगे ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ देखते हैं, सपोज ये हमारा डीएनए है और मान लीजिए यहाँ मेरे पास एडिनिन फ्री हुआ, ठीक है। तो वो जो थाइमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, तो ये आकर के यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इसमें 3 फॉस्फेट है, इसमें से 2 फॉस्फेट टूटेंगे, एनर्जी देंगे और वही एनर्जी इसको बॉन्ड बनाने के काम आएगी। वही एनर्जी इसका नया बॉन्ड बनाने के काम आएगी। वही एनर्जी जो है वो उसको साइटोसिन, अगर मान लीजिए ये साइटोसिन है तो वहां से ग्वानिन बनाएंगे और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के काम आएगी। तो जहां जहां एनर्जी की सप्लाई की जरूरत है वहां पे इंस्टेड ऑफ एटीपी नाउ वी गॉट न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो भी न्यूक्लियोटाइड काम आ रहा उसके ट्राइफॉस्फेट स्पीशीज को हम यूज करेंगे, ठीक है। और उसके फर्स्ट एंड सेकंड फॉस्फेट को जब हम तोड़ेंगे तो उससे जो एनर्जी निकलती है दैट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू बॉन्ड्स, है ना, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। तो ये बनाने का काम जो है उसके लिए एनर्जी का सोर्स ये रहेगा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, समझ आ गया आपको? आई थिंक सो। इफ यू गॉट एनी डाउट यू कैन आस्क मी। यस सर। ओके, सो ये सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। अब तीसरी चीज जो हमको चाहिए वो है रॉ मटेरियल के क्या क्या चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल क्या है, यही चाहिए हमको, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब जो होता है न्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है, लेकिन हमने कहा कि हम न्यूक्लियोटाइड की जगह हम न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कम मिलेंगे। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट लेने से क्या होगा कि वो क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल भी हो गया, वो न्यूक्लियोटाइड भी हो गया, एज वेल एज वो एनर्जी का सोर्स भी हो गया। अब पढ़ते हैं प्रोसेस, हाउ दिस रिप्लिकेशन कैरीज ऑन, ठीक है। The process of replication. डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होगा? हमने पढ़ा डीएनए तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। हमने पढ़ा कि वो सारे के सारे डीएनए जो है अगर हम उसको जोड़ देंगे तो उसकी लेंथ जो है 2.2 मीटर हो जाएगी। ओके, अब हमको तो उतना तो नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि दैट इज ईच डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके अंदर पहले से सेट होता है कि अगर रिप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू करना है तो कहाँ से होगा, वेयर द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन विल बिगिन फ्रॉम। जो जगह है जहां से वो बिगिन हो रहा होता उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक है। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आर वेल डिफाइंड फर्स्ट ओनली, पहले से डीएनए के अंदर रहते हैं, उसका डेफिनेशन उनके उनकी उनकी मतलब देयर आर वेल डिफाइंड पॉइंट्स फ्रॉम वेयर ओनली द रिप्लिकेशन प्रोसेस बिगिन। तो से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रिप्लिकेशन प्रोसेस यहाँ से बिगिन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस सबसे पहले इस जगह से खुलना शुरू होगा, इस जगह से खुल के वहां तक गया और उसने ये रिप्लिकेशन फॉर्क बना दी। अगर ये यहाँ होता तो यहाँ से प्रोसेस शुरू होता, अगर ये यहाँ होता तो यहाँ से होता, ठीक है। एंड देयर आर सम यूकैरियोटिक सेल जिसमें मोर देन 1 रिप्लिकेशन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट रहते हैं, ठीक है। एंड जनरली प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एक ही रहता है। तो ये पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन होंगे या पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहेंगे, जहां से कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कह दीजिए, पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन कह दीजिए, जो भी कहना चाहें आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके हिसाब से ये बन, तो जब ये अनकॉइल होंगे, कौन करेगा अनकॉइलिंग, ये ब्रेक कौन कर रहा है हाइड्रोजन आयन, अभी अपन ने पढ़ा हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम विल ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो ये हेलिकेज एंजाइम यूं चलता जाएगा और वो सारे इनकी बॉन्ड तोड़ता चल जाएगा,
और अल्टीमेटली हमारे पास में क्या रह जाएंगे, हमारे पास में जो है ये जो रिप्लिकेशन फॉक आ जाएगी। से फॉर एग्जांपल यहाँ G है तो यहाँ C है, यहाँ T है तो यहाँ पे A है। तो हेलिकेज एंजाइम यहाँ से चलना शुरू हुआ और उसने इनके बीच के बॉन्ड तोड़ना शुरू किया, ये तोड़ दिया उसने सारे बॉन्ड, और इस तरह से रिप्लिकेशन फॉक बन जाएगी। ठीक है, और बना देते हैं। स्लो रिस्पॉन्स, यहाँ A था तो यहाँ T है, अभी इनके बीच में बॉन्ड है। यहाँ G है तो यहाँ C है, अभी इनके बीच में बॉन्ड है। ओके अब मैं कह देता हूँ कि जो रेड वाला है वो 5 to 3 डायरेक्शन में चल रहा है या 3 to 5 डायरेक्शन में चल रहा है। ये इसका 3 एंड है और ये इसका 5 एंड है। और जो ब्लू वाला है वो इसका ये 5 एंड है और ये इसका 3 एंड है। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे पहले जो है हेलिकेज एंजाइम जो होगा वो उसको उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा एंड टोपोआइसोमरेज इफ रिक्वायर्ड, तो वो उसको एक जगह से काट के उसका टेंशन रिलीज करके वापस जॉइंट कर देगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास रिप्लिकेशन फॉक आ जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, रिप्लिकेशन फॉक, REPLICATION, रिप्लिकेशन फॉक, चिमटे के जैसे हो गया ये। ठीक है, अभी रिप्लिकेशन फॉक जब बन जाएगा, once the replication fork is made, then what will happen? देखिए अब 2 स्ट्रैंड हमारे पास में आ गए है ना। एक स्टैंड ये है 3 to 5 डायरेक्शन में रेड वाला, और एक है 5 to 3 डायरेक्शन में, दैट इज ब्लू वाला। आई शैल ड्रॉ इट वंस अगेन, क्योंकि ये बहुत पास हो गया, मैं इसके बीच में कुछ लिख नहीं पाऊंगा। थोड़ा खोल के बना देता हूँ इसको पूरे को। टू स्ट्रैंड्स है ना, और this we said 3' to 5' and this is 5' to 3'। प्रोग्रेशन जो है वो इस डायरेक्शन में होता जाएगा, इट विल गो ऑन मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब अपन ने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास थाइमीन है, तो इधर क्या होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज इन कलर, यहाँ थाइमीन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिनिन होगा। यहाँ एडिनिन है तो यहाँ क्या होगा, थाइमीन होगा। यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ क्या होगा, साइटोसिन होगा। यहाँ साइटोसिन है तो क्या होगा, ग्वानिन है तो यहाँ क्या होगा, साइटोसिन होगा। यहाँ थाइमीन, यहाँ एडिनिन, यहाँ एडिनिन, यहाँ थाइमीन, यहाँ साइटोसिन। साइटोसिन इज स्टिल अटैच्ड, थाइमीन इज स्टिल अटैच्ड। ये अलग हो गए टी, ये टी, और यहाँ ए। So this is how the two strands are separated. Now यहाँ क्या देख रहे हैं अपन कि जैसे जैसे ये खुलते जाएंगे, immediately triphosphate nucleotide will come and arrange over it. एडिनिन खुला, immediately थाइमिन आ गया। साइटोसिन खुला, immediately ग्वानिन आ गया। ग्वानिन खुला, immediately साइटोसिन आ गया। एडिनिन खुला, immediately थाइमिन आ गया। थाइमिन खुला, इमीडिएटली एडिनिन आ गया। थाइमिन खुला, इमीडिएटली एडिनिन आ गया, और इनके बीच का ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये इमीडिएटली कंटिन्यूस बनते चल जाएंगे। दे विल नॉट वेट कि भाई 4-5 खुले हैं तब हम इकट्ठा प्रोसेस शुरू करें। जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड खुलते जाएंगे, इमीडिएटली न्यू स्ट्रैंड विल सिंथेसाइज। तो सिंस इट इज न्यू स्ट्रैंड इज कंटिन्यूसली सिंथेसाइज, तो हम इसको कहेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और हम इसको कह देंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, और ये वाला स्ट्रैंड कौन सा होगा, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। दोनों ही टेम्पलेट है ये और ये, और जो कंटिन्यूस बन रहा है उसको हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड कह देंगे, है ना। कंटिन्यूस स्ट्रैंड हमेशा किस डायरेक्शन में चलता है, 5' to
3' ना ऑन द अदर एंड यहाँ पे 5' to 3' इस डायरेक्शन में चल ही नहीं सकता क्योंकि 2 strands आर ऑलवेज एंटी पैरेलल, तो वी ऑलरेडी हैव देयर 5' मतलब ये 5' to 3' चल रहा है यूं, तो इसके ऊपर नया स्टैंड तो 5' to 3' इससे चल नहीं सकता, तो 5' to 3' वो इस साइड में चलेगा। तो इस साइड में चलने के लिए क्या होगा, यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम जब तक कि कुछ न्यूक्लियोटाइड वहां पे ऑलरेडी आ ना जाए। तो मान लीजिए हमारे पास ये 4 न्यूक्लियोटाइड खुल गए, एक्सपोज हुए। व्हेन 4 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास एक्सपोज हो गए, तब तब कोई एक स्ट्रेच ऑफ प्राइमर जिसके अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन है वो आकर के इस पे लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल। सो नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज एन ओकाजाकी फ्रेगमेंट। फिर दूसरा फ्रेगमेंट आ गया यहाँ पे टी टी ए and DNA dependent DNA ligase will join it। ठीक है, तो यहाँ 5' to 3' ये था, है ना, यूं चल रहा है। तो एक स्ट्रेच आया, फिर दूसरा स्ट्रेच आया, फिर तीसरा स्ट्रेच आया, तो इसको क्या रुक रुक के चलना पड़ेगा। ये कंटिन्यू चल रहा है, जैसे एक खुला इमीडिएटली आ गया, दूसरा खुला इमीडिएटली आ गया, तीसरा खुला इमीडिएटली नया न्यूक्लियोटाइड आ गया। यहाँ ऐसे कंटिन्यू नहीं आ सकते हैं, तो ये रुक रुक के चलेगा, और जब वो 3-4 न्यूक्लियोटाइड खुल जाएंगे देन अ पर्टिकुलर स्ट्रेच विल कम एंड अटैच ओवर इट। So those stretch which are synthesized by the enzyme primase, which are known as primers there, when they come and fit here, they are called Okazaki fragment, and the Okazaki fragments will be then joined by DNA dependent DNA ligase। तो इसको अब अपन कह देंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ये रुक रुक के चल रहा है, और हम इसको कह देंगे डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू इन दिस डायरेक्शन। वो चलता जाएगा आगे से आगे जब तक कि पूरे के पूरे 2 स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हो जाए। ना इससे हमारे पास में 2 डीएनए बनेंगे, और दोनों डीएनए के नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस देख लीजिए आप क्या है। यहाँ पे यहाँ TA, यहाँ भी TA, ये TA, यहाँ पे भी TA, यहाँ GC, यहाँ भी GC, यहाँ CG, यहाँ पे भी CG, and the 2 strands which are synthesized or the 2 DNA which are synthesized will be exact replica of one another, and that is why we say that the process of replication is 100% genuine। उसके अंदर कोई चांस नहीं है एरर होने के, उसमें गलती के कोई चांस नहीं है, वो बिल्कुल 100% फेथफुली अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमको इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो चीज समझना था वो ये था, दैट इज व्हाट आर द वेरियस एंजाइम्स। तो हमने पढ़ा कि इसके अंदर 5 एंजाइम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमने पढ़ा कि भाई वो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो भी न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और थायमिन ट्राइफॉस्फेट जो होंगे, थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो ही वहां पर आएंगे, और उसके जो मतलब सेकंड एंड थर्ड नंबर के फॉस्फेट हैं वो टूटेंगे, और उनसे जो एनर्जी निकलेगी दैट विल बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड जो है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी वो 2 फॉस्फेट बॉन्ड जो है हर एक के न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफॉस्फेट से जो निकल रहे हैं उन्हीं से ये दोनों बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी चाहिए बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ कोई सेपरेटली एटीपी यूज हो रहा ऐसा कोई जरूरी नहीं, एटीपी तो होगा ही होगा, थाइमिन के ऊपर एटीपी ही आएगा, लेकिन मतलब एडिनिन है तो उसके ऊपर टीटीपी आएगा, अगर ग्वानिन है तो उस पर सीटीपी आएगा, और अगर क्या कहते हैं साइटोसिन है तो उस पर जीटीपी आएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास 4 स्पीशीज है, और उन चारों स्पीशीज के नाम अपन ने यहाँ पे लिख दिए, तो वो अलग अलग हैं, वो अलग अलग जगहों पे यूज होंगे। और ये प्रोसेस इतना एक्यूरेट है कि इसके अंदर बिल्कुल भी एरर नहीं होता। तो व्हाट 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन? फर्स्ट इज एक्यूरेसी, कि इसमें कोई चांस ही नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो एक्यूरेसी चाहिए, एंड दूसरा द रेट। इंसान के अंदर कितने बेस पेयर मिल रहे हैं? 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर, और ये पूरा का पूरा जो है वो 18 मिनट्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता, मतलब पूरा बन जाते हैं 18 मिनट के अंदर।
जितना भी डीएनए हमारी बॉडी के अंदर, हमारे किसी एक सेल के अंदर होते हैं, वो पूरे के पूरे डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कितना फास्ट। अगर मैं इन नंबर को ऐसे लिखूं 6.6 के आगे मैं 18 बिंदियां लगा दूं तो आपको इसकी भयावहिता समझ आएगी। 6 6 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, डिवाइडेड बाय 18 सेकेंड्स, तो 18 इंटू 60। तो आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, ये 11 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 18। तो आप देख पाएंगे कि कितने 3 3 6 और 1 7 5 4 5 6 7 अपॉन 18। तो कितने कितने बेस पेयर जो होते हैं पर सेकंड कॉपी होते हैं। बुक में तो दे रखा है कि वो नियरली 2000 बेस पेयर एक सेकंड के अंदर कॉपी करता है ना। तो उस हिसाब से भी ये रेट बहुत तेज है, लेकिन रेट इज नॉट अलोन इनफ। हमारे को रेट के साथ में एक्यूरेसी भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, है ना, कि उसके अंदर कोई गलती नहीं हो, एक गलती भी नहीं होना चाहिए। इवन वन सिंगल मिस्टेक कैन क्रिएट ब्लंडर। ठीक है, जब हम टाइपिंग का टेस्ट देते हैं ना, अगर किसी कंपनी में सेक्रेटरी का या किसी टाइपिस्ट का या किसी उसका टेस्ट मतलब इंटरव्यू होता है, तो दे गिव अस अ पैराग्राफ और दे गिव मतलब दे टेल द स्पीच एंड वो आपसे बात करते हैं कि भाई, आपसे कहते हैं कि आप इसको टाइप कर दीजिए साथ के साथ कंटिन्यूशन। एंड एक तो उनको टाइपिंग की स्पीड चाहिए और एक एक्यूरेसी चाहिए, कि मतलब आप 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड टाइप करते हैं। मिनिमम 60 वर्ड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक मतलब वर्ड, नॉट द अल्फाबेट्स, है ना। तो 60 वर्ड 70 वर्ड जो है आप पर मिनट के अंदर टाइप करेंगे। और दूसरा आपको क्या चाहिए, उसके अंदर एक्यूरेसी भी चाहिए, गलती भी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, कोई अल्फाबेट छूट भी नहीं जाना चाहिए। बट वो टाइपिंग टेस्ट कोई भी आदमी पूरी तरह से 100% एक्यूरेसी से नहीं दे सकता। अगर एक पैराग्राफ बोलेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर एक आध गलती तो निकल ही जाएगी, है ना। या तो कोमा नहीं लगा होगा, या कहीं गैप नहीं हुआ होगा, या पंक्चुएशन ठीक से नहीं लगा होगा, कहीं स्पेलिंग एरर होगा, कहीं पे कैपिटल या स्मॉल का एरर होगा, कहीं पे कोई नंबर जो हैं वो ठीक से नहीं दबे होंगे। देयर में बी सम एरर, बट हमारा जो डीएनए कॉपी कर रहा है ना अपने आप को, वो इतनी एक्यूरेसी से कर रहा है कि उसके अंदर कोई गलती नहीं आ रही है। 6 × 10⁻6.6 × 10⁹ जो बेस पेयर है उसको वो 18 मिनट के अंदर कॉपी कर लेता है। ठीक है, एक सेल के अंदर। ऐसे हमारी बॉडी में 300 ट्रिलियन सेल्स है, तो उन हर सेल के अंदर जो है वो 18 मिनट्स के अंदर वो उसकी कॉपी कर लेता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हाउ फास्ट, और उसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी भी बहुत चाहिए होगी डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, और जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। और हम जानते हैं कि अगर एक नाइट्रोजन बेस में गलती हो गई थी, हमने देखा था कि GAG की जगह GUG लग गया था, तो क्या कमाल हो गया था राइबोसो मतलब आरबीसी के स्ट्रक्चर के अंदर। हमने देखा था वो जो बाइकॉनकेव होती थी, वो बाइकॉनकेव की जगह कैसे होने लगी थी, वो सिकल सेल हो गई, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ वन नाइट्रोजन बेस, है ना। तो एक नाइट्रोजन बेस की भी गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी एक्यूरेसी से। एंड हाउ मेनी टाइम्स डू आवर सेल मल्टीप्लाइज, कितनी कॉपी करता है। We start our life from one single cell zygote, और यहां से हमारी बॉडी एक एडल्ट के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि somewhere about 300 ट्रिलियन सेल्स आर देयर। ठीक है, 300 ट्रिलियन सेल्स आर देयर। इतनी सेल्स बनी है, तो वो 1 से 2 बनी होंगी, 2 से 4 बनी होंगी, 4 से 8 बनी होंगी, 8 से 16 बनी होंगी फिर। और ये कोई प्रोसेस रुक नहीं गई है, ऐसा नहीं है कि 300 ट्रिलियन का मार्क अचीव हो गया, अब प्रोसेस को रोक दीजिए। उनमें से बहुत सारी सेल्स रोजाना मरती हैं। आरबीसी आर डाइंग डेली, WBC आर डाइंग, प्लेटलेट्स आर डाइंग, स्किन सेल्स आर डाइंग, एपिथेलियल सेल्स आर डाइंग, स्टमक की सिरोसा लेयर जो है, इंटेस्टाइन की सिरोसा लेयर, वो रोजाना मर रही हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं वो रोजाना मर रही होती हैं, दे आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड। सो इतनी बार होने के बाद भी उसमें कोई एरर नहीं है। आप देख लीजिए ना,
आपकी स्किन जो है वो तो रोजाना पील ऑफ होती है, और जब खास तौर से जब हम रगड़ रगड़ के नहा रहे होते हैं, और कभी जो अपन सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार एक प्यूमिक स्टोन लेके बैठ जाते हैं, खचाखच पूरा रगड़ देते हैं अपने को, या पार्लर में जाते हैं और अपनी स्केलिंग करवा लेते हैं, बोले अरे मेरे यहाँ पे थोड़े क्या कहते हैं ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं, तो वो उठाता है और अपना पूरा मशीन लगा करके और पूरी से, या आप वो क्या कहते हैं पील करवा लेते हैं, है ना। तो वो सारे के अंदर आपकी स्किन की कितनी सारी लेयर जा रही हैं, और वो दे विल बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली। कुछ ही घंटों के अंदर वहां पे नई लेयर्स आ जाएंगी, है ना। ऊपर की मतलब अंदर वाली लेयर तो आई है, वो तो बाहर आ जाती है और वो तो मर जाएंगी, एंड अंदर से नई लेयर आ जाएंगी। तो वो नई लेयर्स जो है कंटिन्यूसली बन रही है, और ईच रिप्लिकेशन इज फेथफुली कंडक्टेड, उसके अंदर जरा भी गलती नहीं है। नहीं तो पता चलता है कि स्किन की जगह यहाँ पे आंख निकली आई है, कहीं पे कान निकले आए, कहीं पे स्किन निकले आए, कहीं पे स्टमक की सेल बन गए, कहीं गॉल ब्लैडर की सेल बन गए, कहीं पे कुछ और। ठीक है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि हमने जेनेटिक्स पूरा पढ़ लिया, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है। The complexity of the genetics is so high that we will never be able to say that we have done the entire state of genetics। आप देख लीजिए ना, हम अभी तक यही नहीं समझ पाए कि वो इतने एक्यूरेसी से कैसे कर पाता है। हम ये भी नहीं समझ पाए कि वो, अच्छा, इन द वी आर इवन कम टू नो दैट इन द लोअर ऑर्गन दैट इज प्रोकैरियोट्स वगैरह, क्योंकि हमने स्टडी प्रोकैरियोट्स की करी है, ई कोलाई के ऊपर हमने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे, तो हमने ये भी देखा कि उनके अंदर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रूफ रीडिंग भी मिलती है कि एक बार पूरा स्ट्रेच रिप्लिकेट होने के लिए वो बन गया, उसके बाद वो उसको जाकर के देखता भी है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो काम कर रही हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात आप इसको ये समझिए कि इन सबको आपको स्टडी करने के लिए यू कैन नॉट टेक देम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और किसी और माइक्रोस्कोप में दिखेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक कमी है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लेके जा रहे हैं तो आपको उसको जो है किसी हैवी एलिमेंट से स्टेन करना पड़ेगा। हैवी एलिमेंट जैसे सिल्वर के किसी सॉल्ट से, या बेरियम के किसी सॉल्ट से, या किसी और चीज के किसी सॉल्ट से। तो उसको जब हम स्टेन करेंगे तो वो सेल तो मर ही जाएगी, और जब सेल मर जाएगी तो ये रिप्लिकेशन थोड़ी हो रहा होगा। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लिमिटेशन है। तो इनमें से कई चीजों को हम जो है केमिस्ट्री के या फिजिक्स के किसी दूसरे प्रिंसिपल्स को यूज करके जो है पता करते हैं। एवरीवेयर वी कैन नॉट सिंपली सी देम द प्रोसेस है क्या कहते हैं गोइंग ऑन थ्रू आवर ओन नेकेड आईज। ठीक है। तो हमको कई बार जो है ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स का मतलब लेना पड़ता है सहारा, और उससे हम इसको कर रहे होते हैं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू हाउ रिप्लिकेशन टेक प्लेस, एंड रिप्लिकेशन इज अ कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस। कहाँ पे रिप्लिकेशन की जरूरत पड़ रही है, कहाँ पे रिप्लिकेशन की जरूरत पड़ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिप्लिकेशन की कहाँ जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर, तो रिप्लिकेशन की जरूरत है दैट इज ड्यूरिंग ग्रोथ। ठीक है। डेवलपमेंट, हमको नए ऑर्गन्स बनाने हैं तब जरूरत पड़ेगी, नए टिश्यूज बनाने हैं तब जरूरत पड़ेगी। ग्रोथ तो केवल इंक्रीज इन साइज है ना, इंक्रीज इन साइज मास एंड ऑल। तो ग्रोथ में जरूरत पड़ी, डेवलपमेंट में जरूरत पड़ी, रिपेयर करना है, कई सारे सेल्स मरती रहती हैं और डैमेज हो जाती है, रिपेयर करना है, कई सारी मर रही हैं तो उसको रिप्लेस करना है। ठीक है। कई सारी जो ऑर्गन्स जो होते हैं वो रीजनरेट कर लेते हैं अपने आप को, तो रीजनरेशन में जरूरत पड़ती है, रिप्रोडक्शन में जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो इन सारी जगहों पे जो है हमको नई सेल्स की जरूरत पड़ेगी, और जब जब नई सेल्स बनानी है द सेट ऑफ द डीएनए हैड टू रिप्लिकेट इटसेल्फ। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना पड़ेगा, बाकी जगहों पे जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। डीएनए से दूसरा डीएनए कहाँ बनाना होगा, ये कौन सी स्टेज में होता है ये, व्हेन डू रिप्लिकेशन बिगिंस। हमने माइटोसिस पढ़ा या मियोसिस पढ़ा, सेल डिवीजन हमने पढ़ा, सेल साइकिल में हमने पढ़ा था। सपोज हमारे पास में एक सेल है यहाँ पे, दिस इज वन सेल, एंड दिस सेल यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, और यहाँ पे आकर के इसने एक और नई सेल बनाई। तो ये जो फेज है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम एम फेज कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेज। और इंटरफेस को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इफ यू रिमेम्बर, टेल मी व्हाट आर द 3 फेजेस, बताओ बच्चे। अगर ये G1 है तो ये क्या होगा, G2
G2, G2 यहाँ होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ है S फेज, ठीक है। G1, S एंड G2 सेल डिवीजन चैप्टर 10 था ना, 9 था, चैप्टर 9 था शायद, चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10 11th, तो वहां हमने इनको पढ़ा। और ये एस फेज का मतलब क्या है, एस मीन सिंथेसिस, एंड व्हाट इज सिंथेसाइज, अ डीएनए टू अनदर डीएनए। तो चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, एम स्टैंड फॉर माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस, जो भी हो उसके अंदर जो प्रोसेस होगा उसमें एस फेज के अंदर अगर कोई सेल चला गया है तो उसके बाद उसका एम फेज होना जरूरी है। G1 में तो वो केवल एनर्जी स्टोर कर रहा है, रॉ मटेरियल स्टोर कर रहा है। Once it enter into the S phase, that means उसने एक डीएनए का दूसरा डीएनए बना लिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, द क्रोमोसोम कंटेंट या डीएनए कंटेंट इज डबल्ड। क्रोमोसोम नहीं बने अभी, लेकिन डीएनए कंटेंट इज डबल, एंड डबल डीएनए कंटेंट के साथ एक सेल नहीं रह सकती है, वो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे, इसलिए फिर तो उसको एम फेज में जाना ही होगा। देन इट विल अंडरगो G2 फेज एंड देन एम फेज, एंड अ न्यू सेल विल सिंथेसाइज। हमारे पास ये ओरिजिनल सेल थी, तो ये नई सेल आ गई। देन अगेन, तो इंटरफेज के अंदर ही वो अपना आप को तैयार करती हैं फॉर सेल डिवीजन। और कौन सा फेज है वो जिसमें वो अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर रही हैं, वो है एस फेज। तो आई थिंक आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, कहाँ पे काम आ रही है ना, कौन कौन से एंजाइम काम आ रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, और रॉ मटेरियल क्या क्या काम आ रहे हैं, है ना, और कैसे हो रहा है वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, और लेगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, प्राइमर्स, एंड क्या कहते हैं, ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, या इनका क्या रोल है, एस फेज का क्या रोल है ना, और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे काम आ रही हैं, ये सारी चीजें हमने, और हमने रेट भी पढ़ा, हाउ फास्ट एंड हाउ एक्यूरेट, एंड अगर एक्यूरेसी के अंदर कुछ भी कमी हो जाएगी तो क्या होगा। इवन वन नाइट्रोजन बेस के अंदर कहीं गलती हो गई तो इट विल लीड टू म्यूटेशन। हम वी कैन नॉट अफोर्ड इवन एरर ऑफ वन नाइट्रोजन बेस, ठीक है। सो रिप्लिकेशन इज कंप्लीटेड। कल टेस्ट लेना है? नो सर, थर्सडे। परसों, अच्छा। तो कल फिर हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू सर।